جب ہم ہاتھی دانت دفن کر چکے تو میں نے اس مقام کی جہاں ہم نے ہاتھی دانت دفن کیا تھا چند خصوصیات کا معائنہ کیا اور چند نشانیاں مقرر کر کے انہیں ذہن نشین کر لیا تاکہ جب میں بعد میں ہاتھی دانت کھود کر نکالنے آؤں تو مجھے یہ جگہ تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر ہم چل پڑے۔ پورے 1 مہینہ تک ہم اس علاقے میں سفر کرتے رہے جو اب اورنج اسٹیٹ کو گری کیولانا سے اور ٹرانسلوال کو باچوانا لینڈ سے جدا کرتا ہے۔ راستے میں ہمیں صرف ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو آج بھی عام ہیں، اور آج بھی ہر مسافر اور سیاح کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی پانی کی قلت اور ندی نالوں کو عبور کرنے کی دقتیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اس جگہ پڑاؤ ڈال دیا تھا جہاں آج کمبری آباد ہے، لیکن ہم فوراً ہی یہاں سے پڑاؤ اٹھا کر آگے روانہ ہونے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اس جگہ پانی کی کمی تھی۔ اس وقت میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کمبری ایک دن ایک آباد شہر بن جائے گا اور جس کی کانوں سے ہر سال 10 لاکھ پاؤنڈ کی قیمت کے ہیرے نکالے جائیں گے۔ انڈا بازمبی کا جادو یوں ہی سا تھا۔ اگر واقعی اس کا جادو زوردار ہوتا تو اس نے مجھے بتا دیا ہوتا کہ اس جگہ ہیرے کی کانیں ہیں، اور آج میں ہیروں کا بادشاہ اور دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ہوتا۔ یہ پورا علاقہ غیر آباد تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی زولو بادشاہ شاکا کا سپہ سالار موسیلی کازے، جو شیر کے نام سے مشہور تھا، فتح و نصرت کے جھنڈے اڑاتا اور تباہی نازل کرتا اس طرف سے گزرا تھا اور اس طرف نکل گیا تھا جو آج مٹابلی لینڈ کہلاتا ہے، اور اس کے اس کوچ کی علامتیں ہر جگہ اور ہر طرف اب بھی نمایاں تھیں۔ وقتاً فوقتاً ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے جہاں کبھی کافروں کے کرال آباد ہوں گے، لیکن اب یہ کرال راکھ اور پتھروں کے انباروں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور ہر پگڈنڈی، ہر میدان اور ہر جگہ گھاس اگ رہی تھی، اور اس گھاس میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی سفید سفید ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اور یہ ان لوگوں کی ہڈیاں تھیں جنہوں نے زولو سپاہیوں کے بھالوں کو بوسہ دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کے ایک ویران کرال میں مجھے ایک بچے کی کھوپڑی مل گئی تھی جس میں چنڈول نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ چنڈول کے بچوں کی آواز نے ہی مجھے اس طرف متوجہ کر دیا۔ اس کے بعد ہی ہمارے ساتھ دوسرا واقعہ ہوا، اور یہ دوسرا واقعہ ہاتھیوں والے اور پہلے واقعہ سے زیادہ اہم اور المناک تھا۔ ہم لوگ دریائے کولونگ کے متوازی سفر کر رہے تھے کہ اینٹلوپ کا ایک گروہ ہمارے سامنے سے گزرا۔ میں نے ایک اینٹلوپ پر گولی چلا دی جو اس کی ران میں پیوست ہو گئی۔ یہ زخمی اینٹلوپ کوئی 1000 گز تک ریوڑ کے ساتھ چلتا رہا اور پھر بیٹھ گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے ہمیں کوئی شکار نہ ملا تھا، چنانچہ کھانے کو گوشت بھی نہ ملا تھا۔ میں نے اس زخمی اینٹلوپ کو گرتے دیکھا تو میں اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور انڈا بازمبی سے کہا کہ وہ چھکڑوں کے ساتھ آگے بڑھ جائے، میں اس سے ڈھلان کی دوسری طرف سے آ ملوں گا۔ اس مقام تک 1 گھنٹے کا سفر تھا، اور پھر میں اینٹلوپ کی طرف چل دیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر یوں بھاگا جیسے زخمی تھا ہی نہیں، لیکن چند گز آگے بڑھ کر وہ پھر بیٹھ گیا۔ میں اس کا تعاقب کرتا رہا کہ آخرکار اس کی طاقت جواب دے جائے گی اور میں اسے جا لوں گا۔ 3 دفعہ میں اس کے قریب پہنچا اور تینوں دفعہ وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگا اور ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب نہ صرف میرا غصہ بڑھ گیا بلکہ میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا جائے اور اگر ممکن ہو تو اس زخمی اینٹلوپ کو دوسری گولی مار کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ میں پہاڑی کی چوٹی پر اور وہاں سے چل کر اس کنارے پر پہنچا۔ چوٹی پر بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اوپر پہنچ کر میں نے دوسری طرف دیکھا اور اینٹلوپ کی بجائے مجھے کچھ اور نظر آیا، زولو فوج۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا اور بار بار دیکھا۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی۔ بے شک وہ زولو فوج ہی تھی جو کوئی 1000 گز دور ایک چشمے کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ چند زولو سپاہی زمین پر لیٹے سستا رہے تھے، چند آگ جلائے پکا رہے تھے، اور چند اپنے ہاتھوں میں بھالے لیے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس فوج میں 2000 یا اس سے کچھ زیادہ سپاہی ہوں گے۔ میں قدرے بے چینی سے سوچ رہا تھا کہ یہ زولو فوج یہاں کہاں سے اور کس غرض سے آئی ہے کہ یکایک میرے دائیں اور بائیں طرف سے وحشیانہ نعرے سنائی دیے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا کہ ایک دیو کامت زولو میرے دائیں اور ایک بائیں طرف سے اپنا چوڑے پھل والا بھالا بلند کیے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے بائیں ہاتھوں میں کالی ڈھالیں تھیں۔ وہ زولو جو میرے دائیں طرف تھا 15 گز اور جو بائیں طرف تھا مجھ سے صرف 10 گز دور تھا، وہ دونوں میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھیں پھیل گئی تھیں، بلکہ ان میں مجھے خون کی پیاس بھی نظر آ رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ چند سیکنڈ بعد ہی ان دونوں کے چوڑے پھل میرے بدن میں پیوست ہوں گے۔ میں نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور بندوق اٹھا کر بائیں طرف والے زولو پر گولی چلا دی۔
गोली उसकी ढाल के ऐन बीच में लगी और उसे फाड़ती और जुल्लू के सीने को चीरती हुई आर पार निकल गई। वह मुर्दा होकर गिरा। मैं बिजली की सी तेजी से दाएं तरफ घूम गया। खुशकिस्मती से मेरा घोड़ा बंदूक का आदी था और धमाके से भड़कता ना था, और जब भी मैं उस पर सवार होकर बंदूक चलाता तो वो खामोश और बेहरकत खड़ा रहता। मैं उसकी जेन पर दाएं तरफ घूम गया। दूसरा जुल्लू मेरे सर पर पहुंच चुका था। चुनाचे मैंने अपनी बंदूक की दूसरी नाली की लुबलुबी दबाई तो उस सिपाही की ढाल बंदूक की नाली को छू रही थी। जोर का धमाका हुआ। सिपाही हवा में उछला और दरवाजे में से निकली हुई कील की तरह मुर्दा होकर मेरे घोड़े के सामने इस तरह गिरा कि उसके भाले का फल मेरे चेहरे के बहुत करीब से गुजर गया। मैं बंदूक दोबारा भरने के लिए ना रुका। मैं ये देखने के लिए भी ना ठहरा कि जुल्लू फौज ने अपने सिपाहियों को मरते देखा भी था या नहीं। मैंने अपना घोड़ा फेरा और एड़े मार मार कर उसे भगा दिया। पहाड़ी से उतरकर मैंने उसे ज़रा दाएं तरफ मोड़ दिया कि अपने आदमियों और छकड़ों के पास पहुंच जाऊं। मैं उस सिमत में अभी 3000 गज भी आगे बढ़ने न पाया था कि अचानक एक रास्ते पर पहुंच गया। उस वीराने में मैं ये रास्ता देखकर चकरा गया। रास्ते पर छकड़ों के पहियों और मवेशियों के घरों के निशानात थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये निशानात ताज़ा थे। चुनाचे मालूम हुआ कि सिर्फ 12 घंटे पहले कोई काफिला इस तरफ से गुजरा था और वही ये रास्ता बनाता चला गया, और फौरन ही पूरा मामला समझ चुका था। जुल्लू फौज इसी काफिले का ताकुब कर रही थी और गालिबन ये काफिला उन बोएरों का था जो तरके वतन करके आ रहे थे। चकड़ों की लीक उसी सिमत चली गई थी जिस तरफ मुझे जाना था। चुनाचे मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा। 1 मील का फासला तय करने के बाद मैं एक चढ़ाई की चोटी पर पहुंच गया, और वहां मैंने देखा कि दूसरी तरफ काफिले का पड़ाव था और काफिले वालों ने अपने छकड़ों से लागगर या पड़ाव बना लिया था। काफिले वालों का क़याम एक दरिया के किनारे पर था और मुझे अपने छकड़े भी नजर आए जो उसी लागगर की तरफ बढ़ रहे थे। 5 मिनट बाद ही मैं वहां पहुंच चुका था, क्योंकि वो बोयर ही थे, लागगर से बाहर खड़े हुए थे और मेरे दोनों छकड़ों को अपनी तरफ आते देख रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी तो उन लोगों ने घूमकर मेरी तरफ देखा। सबसे पहले जिस बॉयर पर मेरी नज़र पड़ी वो हैनस बोथा था। इस शख्स से मैं केप टाउन में कई बरसों पहले मिल चुका था और इससे वाकिफ था। हैंस बोथा बहुत उम्दा आदमी था, लेकिन उसने बड़ी बेचैन तबीयत पाई थी और उसने कभी किसी के इख्तियार और हुक्म में रहना सीखा ही ना था। वो अपनी इस खुद सरी को आज़ादी की तलब कहा करता। चंद बरसों पहले वो उन बॉयरों के गिरोह में शामिल हो गया था जो तरके वतन करके आ रहे थे, लेकिन जैसा कि मुझे मालूम हुआ वो गिरोह के सरदार से झगड़कर अलग हो गया और अब चंद लोगों के साथ और खुद मीरे कारवां बनकर जनूबी अफ्रीका के जंगलों में चल पड़ा कि किसी मुनासिब जगह अपने लोगों की एक नौ आबादी कायम कर ले। सलाम मॉन्सियर बोथा, मैंने डच जुबान में कहा। उसने मेरी तरफ देखा, गौर से देखा, कई सेकंड तक देखता रहा और फिर उछल पड़ा और अपनी बीवी को आवाज़ें देने लगा जो एक छकड़े की अगली नशिस्त पर बैठी हुई थी। अरे फराओ, सुनती हो? यहाँ आओ, देखो कौन आया है। एलन क्वार्टरमैन है ये, अंग्रेज़ मुबल्लिग का बेटा। कहो क्वार्टरमैन कैसे हो, और केप टाउन की ताज़ा खबरें क्या हैं? हैनस, केप टाउन की ताज़ा खबरों से तो मैं खुद भी वाकिफ़ नहीं हूँ, मैंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन यहाँ की खबर यह है कि एक जुल्लू फ़ौज तुम्हारा ताकुब कर रही है और ये फ़ौज यहाँ से सिर्फ 2 मील के फासले पर पड़ाव डाले हुए है। ये मैं इस कदर यकीन से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उस फ़ौज को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा है बल्कि उनके 2 पहरेदारों को कत्ल भी कर दिया है, और सबूत के तौर पर मैंने उसे अपनी खाली बंदूक दिखाई। इस खबर ने बॉयर पर एक सन्नाटा तारी कर दिया। वो बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े रह गई और मैंने देखा कि उनकी रंगत यकायक खौफ से जर्द हो गई और औरतों ने चीख चीख कर अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। मेरे खुदा, हैनस ने कहा, ये ओम टैटवा की रेजिमेंट होगी। ओम टैटवा की रेजिमेंट? हाँ क्वार्टरमैन, जुलू बादशाह डिंगान ने इन्हें बासूटू लोगों पर ताकत करने भेजा था, लेकिन दलदलों की वजह से जुलू उन्हें पा ना सके। चुनाचे अब ये लोग जुलू लैंड वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जानते हैं कि अगर खाली हाथ गए तो डंगान उन्हें सख्त सज़ा देगा। चुनाचे अब ये लोग मौसीली काजे से जा मिलने के लिए शुमाल की तरफ निकल आए हैं। लागगर में अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो लागगर में, और देखो कोई घोड़े पर सवार होकर जाए और मवेशी हुंका लाए। एन उसी वक्त मेरे छकड़े भी वहां पहुंच गए। आगे वाले छकड़े की अगली नशिस्त पर अंडा बाज़म भी बैठा हुआ था। मैंने उसे आवाज़ देकर अपने करीब बुलाया और जुल्लू फौज की उसे भी खबर सुना दी। बहुत बड़ी खबर लाए हो मैकोमेजन, वह बोला। कल यहाँ बॉयर की लाशें पड़ी नजर आएंगी, क्योंकि जुल्लू सुबह तक हमला करेंगे और फिर वो इस पड़ाव को साफ कर देंगे। चुनाचे, और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, अपनी ये काएं बंद करो सफ़ेद सर वाले कव्वे, मैंने कहा।
हालांकि मैं जानता था कि अंडा बाजम्बी ने यह गलत ना कहा था। जुलू वो कबीला था जो सिर्फ मरना और मारना जानता था। चुनाचे जाहिर था कि ये जुलू फौज हैनस और उसके साथियों को पलक झपकते में सफाया कर देगी। मैकोमेजन, तुम इस दफ़ा भी मेरे मशवरे पर अमल करोगे या नहीं? अंडा बाजम्बी ने पूछा। क्या है तुम्हारा मशवरा? सीधा सा मशवरा है, कुछ कहोगे भी या? सुनो मैकोमेजन, अपने छकड़ों को यहीं छोड़ो, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और हम दोनों भाग जाएंगे। यहाँ से जुल्लू हमारा ताक़ुब ना करेंगे क्योंकि बॉयरों से निपट रहे होंगे। तुम्हारी ये मशवरा अहमकाना है। वो क्यों? जाहिर है कि मैं सफ़ेद फामों को जुलुओं के रहमो करम पर छोड़ कर ना जाऊँगा। ये तुम भी जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रही हो। अगर मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो यूं ही सही। बहुत अच्छा मैकोमेजन, जैसी तुम्हारी मर्जी, यहीं रहो और मर जाओ। उसने अपने नथनों में चुटकी भर नस्वार चढ़ाते हुए कहा। आओ ज़रा छकड़ों का मुआयना कर लें। और वो लागर की तरफ चल दिया। मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि लागर में एक आम हलचल, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि भगदड़ मची हुई थी। बड़ी कोशिशों के बाद हैनस बोथा को तलाश कर सका। हैनस, मैंने कहा, क्या बात है क्वार्टरमैन? उसने पूछा। ये तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये तुमने गलत नहीं कहा। चुनाचे क्या ये मुनासिब ना होगा कि तुम छकड़ों को यहीं छोड़कर और अपनी जानें बचाकर भाग जाओ? ये नामुमकिन है क्वार्टरमैन। क्यों नामुमकिन क्यों है? हमारे साथ 2 औरतें इतनी मोटी हैं कि वो 1 मील तक भी ना चल सकेंगी। फिर एक के बच्चा हुआ है, चुनाचे वो बिस्तर पर पड़ी है। और हमारे पास सिर्फ 6 घोड़े हैं। इसके अलावा अगर हम जुलुओं से बचकर निकल भी गए तो भूख और प्यास हमारा खात्मा कर देगी, क्योंकि अशाए खुर्दो नोश का तमाम तर्ज खीरा छकड़ों में लदा हुआ है। नहीं क्वार्टरमैन, नहीं, हम उन वैश्यों का मुकाबला करेंगे और खुदा हमारी मदद करेगा। खैर, खुदा तो हमारी मदद करेगा ही, लेकिन भाई, अपना भला बुरा समझने के लिए उसने हमें अकल भी तो दी है। चुनाचे ये भी तो सोचो कि बच्चों का क्या होगा। क्वार्टरमैन, खुदा के लिए मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, हैनस ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा और खुद अपनी बेटी की तरफ देखा। हैनस बोथा की बेटी को मैंने केप टाउन में गोदियों खिलाया था। बड़ी प्यारी बच्ची थी ये, काले बालों और बड़ी बड़ी आंखों वाली। उसका नाम टोटा था और उस वक्त उसकी उम्र 6 साल की थी। क्वार्टरमैन, तुम्हारे वालिद मुझसे अक्सर कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए मैं शुमाली अफ्रीका में सफ़र न करूं, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। लेकिन अब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ है, हैनस ने कहा। क्वार्टरमैन, एक दरख्वास्त है तुमसे। कहो हैनस। क्वार्टरमैन, अगर हो सके तो मेरी बच्ची को जुलू शैतानों से बचा लेना, बशर्ते कि मेरे बाद तुम जिंदा रह जाओ। लेकिन अगर तुम उसे ना बचा सको तो उसे गोली मार देना। और उसने अपने दोनों हाथों से मेरा एक हाथ पकड़ लिया। हैनस मेरे दोस्त, ये तुम कैसी मायूसाना बातें कर रही हो? अभी वो वक्त नहीं आया है मेरे दोस्त। और अब हम लागर की तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरे दोनों छकड़ों को मिलाकर कुल 10 छकड़े थे, जिन्हें हमने बजाय दायरे के चौकोर शक्ल में खड़ा कर दिया और फिर तमाम छकड़ों को आपस में मजबूती से बांध दिया गया। यानी इस तरह के एक छकड़े का पिछला हिस्सा दूसरे छकड़े के अगले हिस्से से बंधा हुआ था। पहियों में भी जंजीरें डाल दी गईं। छकड़ों के पैंदों और ज़मीन के दरमियान इतनी जगह खुली रह गई कि कोई भी शख्स छकड़ों के नीचे से रेंग कर लागर में दाखिल हो सकता था। चुनाचे ये जगह हमने कांटेदार झाड़ियों से, जो उस जगह कसरत से उग रही थीं, बंद कर दी। चुनाचे यूं एक रोक तैयार हो गई। ये बाड़ या रोक बज़ाहिर नाकाफ़ी सी थी, लेकिन चूंकि हमलावर वैशी सिर्फ भालों से मुसल्ला थे, यानी उनके पास बंदूकें न थी, इसलिए हम अपना बचाव इस रोक में बैठकर कर सकते थे। ख़ुसूसन इसलिए कि हमारे पास बंदूकें थीं। 1 घंटे में बचाव की तमाम तदबीरें जितनी मुमकिन थी मुकम्मल हो चुकी थीं, और अब ये मसला ज़ेरे बहस था कि मवेशियों का क्या किया जाए, जिन्हें हुंका कर लॉगर के करीब ले आया गया। चंद बॉयर चाहते थे कि मवेशियों को भी लागर में ही ले लिया जाए। हालांकि लागर कुछ ज़्यादा वसी नहीं था, या कम से कम उन्होंने कहा उतने ही मवेशी लागर में ले जाएं जितना कि उसमें समा सकते थे। मैंने उनके इस मशवरे की सख्त मुखालफत की और कहा कि बंदूक के धमाकों से मवेशी भड़क जाएंगे और लागर में भाग दौड़ मचाकर खुद हमें कुचल कर रख देंगे। तो फिर क्या किया जाए? किसी ने पूछा। एक सूरत समझ में आई है, मैंने कहा। वो क्या? चंद लोगों ने बड़े इश्तियाक से एक आवाज़ होकर पूछा। किसी मुलाजिम की रखवाली में मवेशियों को आगे भेज दिया जाए, वो उन्हें हंकाता हुआ अपने किसी दोस्त कबीले में ले जाए और वहाँ तुम्हारे मवेशी महफूज होंगे। मैंने कहा, हाँ, अगर जुलुओं ने उन मवेशियों को देख लिया तो वो बेशक उन पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं क्योंकि उस तरफ की ज़मीन नाहमवार है। चुनाचे अगर मवेशियों को इसी वक्त रवाना कर दिया गया तो मेरे ख्याल में वो महफूज होंगे। मेरी इस तजवीज़ को बहुत पसंद किया गया
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے کر لیا گیا کہ ان عورتوں اور بچوں کو بھی جو سفر کر سکتے تھے ان مویشیوں کے ساتھ روانہ کر دیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے ایک بوئر ان کے ساتھ کیا جائے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی مویشیوں اور 12 عورتوں اور بچوں کا ایک قافلہ ایک بوئر اور کافر ملازموں کے ساتھ لاگر سے نکل کر دریا کے کنارے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے 3 ملازم بھی اس قافلے کے ساتھ چل دیے۔ چنانچہ اب لاگر میں میرے ساتھ میرے 3 ملازم اور انڈا بازم بھی رہ گیا۔ رخصت کا یہ منظر بڑا ہی دلخراش تھا، چنانچہ میں اسے تفصیل سے بیان کرنا نہیں چاہتا۔ عورتیں رو رہی تھیں، مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بچے حیرت سے ایک ایک کی صورت تک رہے تھے۔ آخرکار یہ قافلہ چلا گیا اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ اب لاگر میں یہ لوگ رہ گئے، 17 سفید فام، 4 افریقی، 2 موٹی بوئر عورتیں جو سفر نہ کر سکتی تھیں، وہ عورت جو اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ بستر پر پڑی ہوئی تھی اور سفر کے قابل نہ تھی، اور ہینس بوتھا کی بیٹی ٹوٹا۔ ہینس کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی، چنانچہ وہ اسے اپنے سے جدا کرنا نہ چاہتا تھا۔ ٹوٹا کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ 12 عورتوں کا جو یہ قافلہ روانہ ہوا تھا اس میں سے 10 عورتیں اور بچے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور جتنے مویشی وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے ان میں سے نصف کے قریب محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ زولو فوج انہیں پھر نہ پا سکی۔ لاگر سے نکلنے کے تیسرے دن یہ لوگ اس سردار کے کرال میں پہنچ گئے جس کا نام گریگا تھا۔ گریگا نے اپنی اجرت کے طور پر نصف مویشی لے لیے اور ان خانمہ بربادوں کو اپنے کرال میں پناہ دے دی۔ چند دنوں تک گریگا کے کرال میں قیام کرنے کے بعد وہ لوگ پھر آگے روانہ ہوئے، اور جس دن ہمارے لاگر پر زولو فوج نے حملہ کیا اس کے ٹھیک 1 برس بعد مہذب دنیا میں پہنچ گئے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور سپہر کا چل چلاؤ تھا، لیکن اب تک زولو فوج نظر نہ آئی تھی۔ چنانچہ ہمارے دلوں میں امید کی ایک ہلکی سی شعاع گئی کہ شاید زولو فوج کسی اور طرف نکل گئی ہے۔ جب سے انڈا بازمبی کو معلوم ہوا تھا کہ یہ رجمنٹ اوم ٹیٹوا کی ہے، تب سے وہ ایک سوچ میں پڑ گیا تھا، یا کم سے کم مجھے ایسا معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی خیال میں غرق ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی انڈا بازمبی میرے پاس آیا اور بطور جاسوس کے اس نے اپنی خدمات پیش کر دیں اور کہا کہ وہ جا کر زولو فوج کی نقل و حرکت کی خبر لاتا ہے۔ ابتدا میں ہینس بوتھا نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ انڈا بازمبی لانتی کالا کافر ہے، چنانچہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ ہم سے غداری کرے گا۔ ہینس بوتھا نے کہا، اگر اس نے ہم سے غداری کی بھی تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا یا اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں نے کہا، زولو یقیناً جانتے ہوں گے کہ ہمارا پڑاؤ کہاں ہے اور تمہارے قافلے میں کتنے آدمی ہیں وغیرہ۔ البتہ زولو فوج کی نقل و حرکت سے ہمیں ضرور فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آخر میں طے پایا کہ انڈا بازمبی زولو فوج کی خبر لے آئے۔ میں نے اسے مطلع کیا تو وہ سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے میکو میزن، اور وہ روانہ ہو گیا۔ لیکن جانے سے پہلے میں نے حیرت سے دیکھا، وہ ہمارے چھکڑوں کے قریب گیا اور اپنی جڑی بوٹی اور جادو کی دوسری چیزوں کا تھیلا نکال کر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ یہ تم اپنا جادو اپنے ساتھ کیوں لیے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ زولو سپاہیوں کے بھالے مجھ پر اثر نہ کریں، میں اپنے آپ کو غیر ضرر پذیر بنا لوں گا، اس نے جواب دیا۔ میں نے انڈا بازمبی کی اس تشریح پر یقین نہ کیا، اس کے برخلاف میں نے یہ یقین کر لیا کہ وہ خوفزدہ ہو گیا ہے اور اس بہانے سے مجھے چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتا ہے۔ اس بوڑھے سے مجھے انسیت سی ہو گئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ بچ جائے۔ چنانچہ انڈا بازمبی زولو فوج کی جاسوسی کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اسے جاتے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میں کبھی اسے نہ دیکھ سکوں گا، لیکن میرا یہ خیال غلط تھا۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انڈا بازمبی بھاگنے کی فکر میں نہ تھا، بلکہ وہ صحیح معنوں میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا تھا، لیکن بوئروں کے لیے نہیں جن سے اسے سخت نفرت تھی، بلکہ صرف میرے لیے جس سے وہ اپنے طور پر محبت کرتا تھا۔ انڈا بازمبی کے چلے جانے کے بعد ہم نے اپنے تمام انتظامات جو یہاں وہاں سے ادھورے رہ گئے تھے مکمل کر لیے، یعنی چھکڑوں کے نیچے مزید جھاڑیاں کاٹ کر ڈال دیں اور پتھر بھی ایک پر ایک جما کر رکھ دیے کہ ہماری یہ قافلہ کچھ تو مضبوط ہو جائے۔ سورج غروب ہو گیا تو ہم نے کھانا کھایا، یعنی ان حالات میں جتنا کھا سکتے تھے کھایا، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہینس بوتھا نے، کیونکہ وہی میرے کارواں تھا، تمام لوگوں کو بلایا اور وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جھک گئے اور اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جو لاگر میں سے نکل کر روانہ ہو چکے تھے سلامتی اور حفاظت کی دعا مانگنے لگے۔ بڑا ہی اثر انگیز منظر تھا یہ۔ بوئر ہیٹ اپنے ہاتھوں میں لیے ننگے سر بیٹھے ہوئے تھے۔ شفق کی سرخ روشنی ان کی جھلسی ہوئی رنگت کو عجیب سا رنگ دے رہی تھی، اور وہ لوگ رقت انگیز آواز میں اس خدا کو پکار رہے تھے جو ہمارا تنہا سہارا تھا، اور تنہا خدا ہی اب ہمیں زولو وحشیوں کے بھالوں سے بچا سکتا تھا۔
इस दुआ के आखिरी अल्फाज मुझे अब तक याद हैं। हैनस बौथा ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा था, परवरदिगार, अगर हमारी किस्मत में वैश्यों के भालों से मरना ही लिखा है तो तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन ऐ दो जहां के मालिक, हमारे बीवी बच्चों को महफूज रख, बचा ले उन्हें, और मेरी बच्ची टोटा को भी बचा लीजिए। और ऐ परवरदिगार, हमारी मौत बेशक हो, लेकिन हमारी लाशें मस्क न की जाएं। मैंने दिल ही दिल में दुआ के ये अल्फाज दोहराए और आमीन कहा, क्योंकि दूसरों की तरह मैं भी खौफज़दा था और मेरा ये खौफ बेबुनियाद न था। और फिर अंधेरा उतर आया। हम में से हर एक राइफल लिए उस जगह पर बैठ गया जो पहले से उसके लिए महफूज कर दी गई थी। हम अपनी अपनी राइफल हाथ में लिए खामोश बैठे थे और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देख रहे थे। वक्तन फवक्तन कोई बॉयर अलाव में से अंगारा या पतली लकड़ी उठाकर अपना पाइप सुलगाता तो घड़ी भर के लिए उसका चेहरा रोशन हो जाता, जो सोता हुआ और जर्द होता। मेरे आन पीछे उन मोटी औरतों में से एक, जो काफले के साथ अपने मोटापे की वजह से जा न सकी थी, जमीन पर लेटी हुई थी। सूरत हाल की नज़ाकत, खौफनाकी और तनाव भी उसकी आदत को बदल ना सका। चुनाचे वो अपनी आदत के मुताबिक सो गई और बड़े जोरदार खराटे ले रही थी। उस मोटी औरत से कुछ ही दूर और अलाव के करीब कंबल ओढ़े हैनस बौथा की बेटी टोटा लेटी हुई थी। उसने अपना अंगूठा मुंह में ले रखा था। वो भी जो कुछ होने वाला था उससे बेखबर थी और गहरी नींद सो रही थी। वक्तन फवक्तन हैनस बौथा आता और अपनी बेटी को एक नज़र देख जाता। वक्त गुजर गया और हम खामोश बैठे जुलू फौज का इंतजार करते रहे। अफ्रीकी वैश्यों के तौर तरीकों से मैं वाकिफ था, चुनाचे जानता था कि जुलू रात के वक्त हम पर हमला न करेंगे। हालांकि अगर उन्होंने शबखून मारा होता तो वो बड़ी आसानी से हमारा सफाया कर देते और खुद उनके ज़्यादा आदमी मारे ना जाते। लेकिन जुलू कभी रात के अंधेरे में किसी पर हमला न करते थे, बल्कि वो दिन की रोशनी में अमूमन और पौ फटते वक्त खुसूसन जंग करने के आदी थे। रात के 11 बज रहे थे और मैं अपनी जगह पर बैठा झपकियां लेने लगा था कि लागर के बाहर से हल्की सी सीटी सुनाई दी। मैंने फौरन हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और फौरन ही खट खट की आवाज़ें सुनी। ये बॉयर थे जो अपनी बंदूक के घोड़े चढ़ा रहे थे। मैको मैजन, लागर के बाहर से एक आवाज़ ने कहा, और ये अंडा बाजम्बी की आवाज़ थी। जाग रहे हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। तो फिर ज़रा बत्ती दिखाओ कि मैं चढ़कर लागर में आ सकूं, अंडा बाजम्बी ने कहा। हाँ हाँ, दिखाओ बत्ती, मेरे करीब बैठे हुए बॉयर ने कहा। क्वार्टरमैन, तुम्हारे इस आफाम गीदड़ पर मुझे एतबार नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त वो अपने हमवतनों को अपने साथ ले आया हो। कोई दौड़कर एक लालटेन उठा लाया। हमने लालटेन उस तरफ उठा दी जिस तरफ अंडा बाजम्बी की आवाज़ सुनाई दी थी। चंद मिनटों बाद ही वो लागर में था। क्या खबर लाए? बहुत सी आवाज़ों ने एक साथ पूछा। सुनो सफ़ेद फामो, ये है वो खबर जो मैं लाया हूँ, अंडा बाजम्बी ने कहा। मैं अंधेरा उतरने का इंतज़ार करता रहा और जब अंधेरा उतर आया तो मैं सांप की तरह रेंगता हुआ जुलू फौज के पड़ाव के करीब पहुंच गया और एक पत्थर के पीछे छुपकर देखने लगा और सुनने लगा। मालूम हुआ ए सफ़ेद फामो कि बॉस बौथा का ख्याल गलत ना था। बेशक ये ओम टैटवाही की रेजिमेंट है और बड़ी भारी रेजिमेंट है। 3 दिन पहले वो तुम्हारे छकड़ों के निशानात पर अचानक पहुंच गई और तब से तुम्हारे पीछे चले आ रही हैं। आज रात वो अपने भाले अपने सीनों से लगाकर सो रही हैं, लेकिन कल अलग सुबह वो तुम्हारे लागर पर हमलावर होंगे और एक शख्स को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। खूनी दरिया और दूसरी जंगों की वजह से ये लोग बॉयरों से खार खाए हुए हैं। चुनाचे यही वजह है कि उन्होंने मौसीली काजे के पास जाने और उससे जा मिलने की बजाय तुम्हारा ताक़ुब किया। बॉयरों के मुंह से कराह की सी आवाज़ निकली। यूं आहें भरने और यहाँ बैठ रहने से कुछ ना होगा, मैंने कहा। तो फिर क्या किया जाए? किसी ने पूछा। यहाँ बैठ रहना और फिर मज़बा पड़ी हुई भेड़ों की तरह ज़िबा हो जाना सरासर बुज़दिली है और हमाकत है। यही तो हम पूछ रहे हैं क्वार्टरमैन के फिर क्या किया जाए? जुलू मुतमईन और बेखबर होकर सो रही हैं, चुनाचे हम क्यों ना चलकर उन पर हमला कर दें, मैंने कहा। मेरे इस मशवरे ने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया। काफ़ी देर तक बहसा बहसी होती रही और आखिर में सिर्फ एक बहादुर मेरे इस मशवरे पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। बॉयर बुज़दिल न थे, लेकिन उनमें वो बहादुरी न थी जो इंसान को एक बेधड़क सिपाही बना देता है। चुनाचे वो हमले में कभी पहल नहीं करते और ना ही फतह की मौहूम सी उम्मीद पर किसी पर अंधाधुंध जा पड़ते थे। इसके बरखिलाफ ये लोग लागर में बैठकर अपने बचाव करने को तरजीह देते, ख्वाह इस तरह अपने आप को बचाने की कोई उम्मीद ना हो। चुनाचे वो जुलू रेजिमेंट पर शबखून मारने को तैयार ना हुए। रहा मैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर बॉयरों ने मेरी तजवीज़ पर अमल किया होता तो हम जुलूओं को खौफज़दा करके भगा देने में कामयाब हो जाते। 17 सफ़ेद फाम जो बंदूक से मुसल्ला थे अगर सोते हुए वैश्यों पर जा पड़ते तो जाहिर है कि इसका नतीजा खातिर ख्वाह जाहिर होता, लेकिन
मेरी इस तजवीज़ को कबूल ना किया गया। बहरहाल हम फिर अपनी अपनी जगह बैठ गए और रात गुजरने लगी, और ऐसी भयानक और तवील रात का तजुर्बा मुझे पहले कभी ना हुआ था। हमें अपनी मौत का यकीन था। हम जानते थे कि सुबह की पहली किरण के साथ ही ज़ुलू भालों के रूप में हमारी अजियतनाक मौत सामने खड़ी होगी। चुनाचे उम्मीदों, बीम और सनसनी ने हमारे दिल की धड़कनें तकलीफ हद तक तेज कर दी थीं। रात वीरान, खामोश और भयानक थी, और एक एक लम्हा पहाड़ हो रहा था। वक्त काटे ना कट रहा था। क़यामत की रात थी वो, जो आखिरकार ख़त्म हुई, और मशरिकी उफ़क़ किसी दुल्हन के रुखसारों की तरह सुरख हो गया। नसीमे सहरी के झोंके आए, उन्होंने छकड़ों के पर्दे उड़ा दिए, और ऐसे खुनक थे कि मैं सर्दी से कांप गया। मेरे पीछे लेटी हुई मोटी औरत एक जमाई लेकर बेदार हुई। चंद लम्हों तक खामोश पड़ी, सूरत हाल का अंदाज़ा करती रही। दफ़अतन उसे सब कुछ याद आ गया, और वह बेख्तियार करा उठी, और फिर सुबह की सर्दी और खौफ की वजह से उसके दांत बजने लगे। हैनस बौथा अपने छकड़े में से सेब की शराब की बोतल ले आया और टीन के प्याले में हमें शराब पेश करने लगा। शराब पेश करते वक्त वह बेपरवाही से हंस रहा था और इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन उसकी ये बशाशत जबरी थी। चुनाचे उसके साथियों को खुश और मुतमईन करने के बजाय और भी उदास किए दे रही थी। और सच तो ये है कि इस मसनूई बशाशत ने मुझे भी उदास कर दिया। उजाला बढ़ने लगा था, और सुबह की धुंध के बावजूद जो दरिया पर गाड़ी थी जरा दूर तक देख सकते थे। दफअतन टीले के दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे मक्खियां भिनभिना रही हों। यह टीला लागर से 1000 गज के फासले पर था, और इसके अक्कब में से भिनभिनाहट की आवाज़ उभर रही थी, जो दम बदम करीब आने लगी। और जैसे जैसे आवाज़ करीब आ रही थी, वाज़ेह हो रही थी। भिनभिनाहट अल्फाज और फिर गीत में तब्दील हो गई। गीत ज़ुलूं का खौफनाक जंगी तराना, और अब मैं उस तराने के अल्फाज सुन रहा था और मतलब समझ रहा था। तराना जितना सीधा सादा था उतना ही लर्जा खेज था। हम कत्ल करेंगे, हम कत्ल करेंगे, हाँ भाइयों कत्ल करेंगे। हमारे भाले खून पिएंगे, हाँ भाइयों खून पिएंगे। और फिर टीले की कोहान पर ढालें नमूदार होने लगीं, और अब वो नजर आए ज़ुलू सिपाही जो अलग अलग दस्तों में तकसीम थे, और हर दस्ते में 90 सिपाही थे। मैंने दस्तों को शुमार किया तो पता चला कि कुल 91 दस्ते थे। जब तमाम दस्ते टीले की चोटी पर पहुंच गए तो उन्होंने अपनी सफ़ें बनाई। 3 सफ़ें बनाकर वो आगे बढ़े। वो ढलान उतर आए। वो हमारी तरफ बड़ी तरतीब से और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। वो हमसे 150 गज दूर आकर ठहर गई। उन दिनों जो बंदूकें इस्तेमाल होती थी वो इतनी दूर तक मार ना कर सकती थी। चुनाचे ज़ुलू हमारी बंदूकों की जद से बाहर थे, और ज़ुलू वहाँ रुक कर फिर गाने लगे। आखिरकार ज़ुलूं का सफ़ीर सफ़ों में से निकल कर आगे आया। ये देवकामत शख्स था जिसने अपने बाजू में हाथी दांत के कड़े पहन रखे थे। उसने अपने हाथों का भोंपू अपने मुंह पर रखकर और चीख कर पूछा कि मवेशी कहाँ गए। हैनस बौथा एक छकड़े पर जा चढ़ा और चीख कर बोला, वैशी लुटेरो, इस सवाल का जवाब तुम अपने तौर पर मालूम कर लो। इस पर सफ़ीर ने फिर चीख कर कहा, हम समझते हैं कि तुम लोगों ने अपने मवेशी आगे रवाना कर दिए हैं। हैनस बौथा खामोश रहा तो सफ़ीर ने फिर कहा, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, तुम्हारे मवेशी हासिल करेंगे और फिर वापस आकर तुम्हें कत्ल कर देंगे, क्योंकि मवेशियों के बगैर तुम यहीं रहोगे जहां हो। लेकिन अगर हम तुम्हें कत्ल करने के लिए रुके रहे तो मवेशी इस अरसे में दूर निकल जाएंगे और हम फिर उन्हें पा न सकेंगे। इसके बरखलाफ अगर तुम यहाँ से चले गए तो हम आसानी से तुम्हें तलाश कर लेंगे। ऐ सफ़ेद फामो, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। सफ़ीर का यह ऐलान मुझे बड़ा ही अजीब मालूम हुआ, क्योंकि मैं ज़ुलूं के तरीक़े गारतगरी से वाकिफ़ था और जानता था कि वो पहले हमला करती हैं और फिर दुश्मन के मवेशियों पर कब्जा जमाती हैं। इसके बावजूद सफ़ीर का यह ऐलान मुझे बड़ा ही मंतकी और काबिल कबूल मालूम हुआ। चुनाचे मैं उस सफ़ीर के ऐलान और उसके तजाद पर गौर ही कर रहा था कि ज़ुलू फ़ौज एकदम से भाग पड़ी और वो लोग हमारे लागर के करीब से गुजरते हुए दरिया की तरफ निकल गए। फ़ौरन ही खुशी के नारे सुनाई दिए और हमें मालूम हो गया कि ज़ुलुओं को मवेशियों के कदमों के निशानात नज़र आ गए हैं। वो लोग उन निशानात के सहारे भाग पड़े और लागर से कोई पाव मील दूर एक टीले के अकब में पहुंचकर नज़रों से ओझल हो गए। ज़ुलू फ़ौज चली गई, लेकिन हम अपनी जगह पर तैयार बैठे रहे। 10 मिनट गुजर गए, कुछ ना हुआ। आधा घंटा गुजर गया, ज़ुलू नजर न आए। बड़ी अजीब बात हुई है ये तो, हैनस बौथा ने हैरत से सर हिलाकर कहा। खुदा जाने वो शैतान हकीकत में चले गए हैं या उन्होंने कोई चाल चली है। मैं देखता हूँ जाकर, अंडा बाजम्बी ने कहा। मैकोमेजन, तुम भी चलो मेरे साथ, हम उस टीले की चोटी पर चढ़कर देखते हैं कि मामला क्या है। पहले तो मैं ज़रा हिचकिचाने लगा, लेकिन फिर शौक़े तजस्सुस मेरी एहतियात पर गालिब आ गया। बहुत अच्छा, मैंने कहा, चलो मैं चलता हूँ। चुनाचे मैं और अंडा बाजम्बी लागर से निकलकर टीले की तरफ चल पड़े।
हम टीले की बुलंदी पर यूं रेंगते हुए चढ़े जिस तरह शिकारी बड़ी एहतियात और खामोशी से शिकार की तरफ बढ़ता है। हम टीले की चोटी पर पहुंच गए। टीले की दूसरी तरफ की ढलान पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और गुंजान झाड़ियां उग रही थीं। मुझे तो एक भी ज़ुलू नजर नहीं आ रहा, मैंने कहा। वो लोग शायद चले ही गए हैं। अभी अल्फाज मेरे मुंह से निकले ही थे कि मुझे अपने चारों तरफ से खौफनाक नारे सुनाई दिए और हर पत्थर और हर झाड़ी के पीछे से ज़ुलू सिपाही यूं निकल आए जैसे ज़मीन में से उग गए हों। इससे पहले कि मैं घूम और पलट सकता, इससे पहले कि मैं अपनी बंदूक उठा सकता, इससे पहले कि मैं उंगली भी हिला सकता, ज़ुलू मुझे पकड़कर पटक चुके थे। मजबूती से पकड़े रखो, एक आवाज़ ने कहा। यह सफ़ेद रूह है। अगर तुमने ज़रा भी गफलत बरती तो ये सांप बनकर तुम्हारी गिरफ्त से निकल जाएगा। लेकिन देखो इसे कोई नुकसान ना पहुंचे। ठहरो, मैं अंडा बाजम्बी आता हूं इसके पास। मैं गुस्से से पेचोताब खाकर अंडा बाजम्बी की तरफ घूम गया। जलील, कमीने, कुत्ते, गद्दार, आखिर तो मुझे धोखा दे ही गया, मैंने चीख कर कहा। मैकुमेजन, उजलत में कोई फैसला ना करो, देखो क्या होता है अब, अंडा बाजम्बी ने कहा। मैकुमेजन, अब जंग होने वाली है।